اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ تو یہاں پولس رسول ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اور ہم جو مسیح میں راست بار ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، اور جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں راست باز بننا چاہتا ہوں، میں راست باز بننا چاہتی ہوں، ان کے لیے آج کا یہ کلام ہے کہ پولس رسول بتاتا ہے کہ اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر خود ہی گناہگار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ یہاں سوالیہ نشان ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانا چاہتا ہوں اور بعد میں خود ہی گناہ کر لوں، یعنی کہ جو میں نے ڈھا دیا ہے، یہ دیوار میں نے توڑ دی ہے، اس لیے توڑی کہ اب اسے کبھی نہیں بنا دے، اور ایک دن کے بعد پھر میں اسے بنا رہا ہوں۔ میں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، خدا یہ دیوار میں توڑ رہا ہوں، اب یہ دیوار نہیں بنے گی۔ ایک دو دن بعد پھر میں اس کو بنا رہا ہوں، اس کے اوپر رندے رکھ رہا ہوں گناہ کے، اس کے اوپر گناہ کے رندے رکھ کر اس کو بناتا جا رہا ہوں، اور میں ادھر ہو گیا ہوں اور مسیح دیوار کے اس طرف چلا گیا۔ آپ سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ دیوار توڑ دی ہے اور خدا سے کہا کہ خدا اے دیوار میں توڑ رہا جڑی تیرے تو میرے وچ سی، اور اس کے بعد اس کو توڑنے کے بعد 2 دن کے بعد پھر میں اس کو بنا رہا ہوں، اس کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کہ اب مسیح مجھے نظر نہیں آ رہا اور میں مسیح کو نظر نہیں آ رہا۔ مگر یہاں پولس رسول ہمیں یہی بتانے کے لیے آج کے اس کلام میں کہ اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر خود ہی گناہگار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ سوال ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، راست باز بننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد خود ہی گناہگار نکلوں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح گناہ کا باعث ہے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے میں نے گناہ کر لیا؟ میرے عزیزو، گناہ تو ہم نے کیا نا۔ یسوع مسیح تو اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوئی اس میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہے کوئی ایسا؟ آپ میں سے ایسا کوئی ہے جو یہ کھڑے ہو کر بڑے دعویٰ سے کہہ رہے کہ میرے سے کوئی گناہ ثابت کر کے کر سکتا؟ میں تو خود ہی ثابت کر دوں گا، میں ابھی گناہ کیتا، میں ابھی کیتا۔ مگر یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ ہے، گناہ اس کے اندر آ نہیں سکتا۔
एक इंसान जो कि गुनाह की पैदावार है, ठीक है, वो ये कह नहीं सकता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। भाई इंसान जो है वो तो है ही गुनाह की पैदावार। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। आता ना सबको ज़बूर, बड़ा पुराना ज़बूर है, हमारी पैदाइश से पहले 200-300 साल पहले की बात है। तो उस ज़बूर में दाऊद कहते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, मैं भी पैदा होया वेखो विच गुनाह दे। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फज़ल नाल ये सबको आता है। यहाँ दाऊद नबी क्या करें, कितने लोग ये कहते हैं कि मैं कोई गुनाह नहीं किया। भाई हमारी तो पैदाइश ही गुनाह में हुई है, तो हम कैसे कहते हैं कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। हम तो गुनाह में पैदा हो गए। यीशु मसीह गुनाह से लाताल्लुक़ है, ठीक है, यीशु मसीह गुनाह से लाताल्लुक़, क्योंकि वो बाप और माँ के वजह से पैदा नहीं, वो किससे पैदा हुआ? रूह से। किससे? रूहुल कुद्स से पैदा हुए। हम जितने यहाँ बैठे हैं अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए। तो जो माँ बाप की वजह से पैदा हुए उनको बाइबल क्या कहती है? वो गुनाहगार है। और वो गुनाह कहाँ से आया? आदम और हवा के। और जितने उनके पैदाइश के लोग हैं वहां से लेकर यहाँ तक सब गुनाहगार हैं। और उस गुनाह को खत्म करने के लिए, उस गुनाह की दीवार को ढाने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस रसूल हमें यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, हम इरादा कर लेते हैं कि उनमें गुनाह नहीं करना, और मैं तौबा कर दी, और मैं दुश्मन है, और उस तो बाद मैं रास्तबाज बन गया, मैं निजात याफ्ता बन गया, मैं आज को इकरार कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या आता है? कितने लोग कायम रहते हैं इस पर? बहुत थोड़े लोग हैं जो कायम रहते हैं। ज्यादातर अभी हमने यहाँ क्या देखा कि रास्तबाज रहना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का वारिस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। कभी आपने अपने आप को कसूरवार ठहराया कि भाई मैं खुदा ना इकरार किया सी, ठीक है, ते हुण मैं काम फिर कर लिया। ठीक इसी तरह जिस तरह दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, दोनों खड़े होकर इकरार करते हैं। क्या करते हैं? क्या इकरार करते हैं? मैं दुख में सुख में, है नहीं, मैं दुख में सुख में तेरे साथ रहूंगा या रहूंगी। यानी कि इकरार किसके साथ किया है? खुदा के साथ। रहना किसके साथ है? बीवी के साथ या शौहर के साथ। तो हम इस बात को देखते हैं, इकरार करके साल लगता है,
मुश्किल नहीं लगता था तो वादे पता नहीं कितने चल गए। मैं दुख में सुख में क्या करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। तो ये क्या है, हम जहां चर्च में खड़े होके जो हमारा जमीनी रूहानी बात है, जमीनी उसके सामने इकरार कर रहे हैं, तो जो हम सब का बात है उसके सामने हम सब इकरार करवा रहे हैं। तो चंद महीनों के बाद, कुछ लोग तो 1 महीने के बाद ही फारिग हो जाते हैं, 1 महीना निकालते हैं, बस खत्म, केड़ा फिरार और तो सिर्फ शादी से, और तो सिर्फ सैर करने से। तो मेरे अजीजों, खुदा के सामने जो लोग इकरार करते हैं और फिर उसको बाद में रद्द कर देते हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी होगी, फिर किस तरह की होगी उनकी जिंदगी, उनकी अस्तवादी जिंदगी कैसी होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाओ तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। तो कभी हमने अपने आप को कसूरवार ठहराया, कभी कहा हमने कि मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ ठीक नहीं चलती, या शौहर ने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं चलता, हालांकि हमें पता है कि हमने इकरार किया हुआ है, मगर हमारे अंदर एक चीज है जो हमें इकरार नहीं करने देती, और वो क्या है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कौन कहता है मैं ठीक हूं, बीवी के लिए मैं ठीक हूं, तो गलत कौन है। जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है कि और हम जो उसी में रास्तबार रहना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है, गुनाह असी कर ले, मसीह तो गुनाह का बायस नहीं है। खराब गलत काम हमारे हैं, हम तो खुद अपने आप को अपने घर में मुख्तलिफ तरह की बातों में उलझा रखा। तो बताने का मकसद ये है, ये एक अलग टॉपिक था, अगर असल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि वो शख्स जो अपने आप को रास्तबाज ठहराना चाहता है, वो कहता है कि मैं रास्तबाज बनना चाहता हूँ, और खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है, हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। 19वें आयत में लिखा है कि चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, सब कहे हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मौजूद रहा करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं, चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। 20वीं आयत हमें क्या कहती है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे पौलुस रसूल कि मैं इसके साथ, मसीह के साथ मसलूब हुआ।
میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ کب مصلوب ہوتے ہیں؟ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب کب ہوتے ہیں؟ کون سا وقت ہوتا ہے جب ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مر جاتے ہیں؟ جب بپتسمہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس دن ہماری موت ہو جاتی ہے، جسمانی موت اس دن ہو جاتی ہے۔ ہم جسمانی طور سے پانی میں، پانی کیا ہے؟ ہاں جی، پانی کیا ہے؟ جب ہم پانی میں جاتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو، جب ہم پانی میں یوں کر کے پیچھے کو جاتے ہیں تو کیا ہے وہ؟ یاد ہی نہیں؟ قبر۔ آپ سے نہیں پوچھا، میں نے جن کو بتایا تھا ان سے پوچھا، اب تو بتا دیا، اب تو کہہ کہ ہاں قبر ہے۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کو پیچھے کی طرف یوں کر کے پانی میں گراتے ہیں تو وہ آپ کو قبر میں ڈالتے ہیں۔ جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو آپ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ پالوس رسول یہی تو بتانا سارا کچھ تو یہاں لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا کیونکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں مر گیا ہوں، پانی کے اندر، قبر کے اندر مر گیا ہوں۔ اب میں جو اٹھا ہوں تو میں نہیں اٹھا، میرے اندر مسیح اٹھ گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے مرنا ہے، یعنی کہ اس کا میں نے مطلب بتایا تھا آپ کو، بپتسمے کا مر جانا، ڈوب جانا، اپنے آپ کو رکھ لینا، ہوتا ہے، 4 مطلب میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور یہاں مرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب میں زندہ نہ رہا کیونکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پالوس رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں، مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے آپ کو راست باز اگر سمجھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرنا۔ اور مرنا جو ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، مرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ختم۔ مرنے کا مطلب ختم، صفایا، یعنی کہ جب ہم نے مسیح میں مرے ہیں، جب ہم مرے ہیں تو مسیح میں زندہ بھی ہو گئے، یعنی کہ پانی میں جا کر ہم مر گئے، میرا گناہ آلودہ بدن پانی میں مر گیا، اب جو بدن اٹھا ہے وہ روحانی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس بدن کے اندر مسیح اتر آیا ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم زندہ ہو گئے تو اب اگر ہمیں کوئی مارتا ہے، ہمیں کوئی ٹارچر کرتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، کب؟ جب ہم مسیح میں زندہ کیے گئے، تو وہ ٹارچر کس کو کر رہا ہے؟ مسیح کو کر رہا ہے۔
क्योंकि अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। इन चीजों को हमने अपने ज़हन में रखना है कि अब मैं नहीं हूँ। आप समझे कि मैं तो मर गया था उस दिन जब मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं उस दिन मर गया। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं है, अब नहीं है, खुदाइश भी नहीं है। आपको पता है कुछ लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी बर्थडे जो मनाते हैं पुरानी वाली खत्म करके जिस दिन वो बपतिस्मा लेते हैं उस दिन से बर्थडे मनाना शुरू करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कहते आज मैं आज जिंदा हुआ, मैं आज पैदा हुआ। जिस दिन वो बपतिस्मा देते हैं उस दिन से वो अपनी बर्थडे सिलेक्ट कर लेते हैं। वो दिन कहते हैं अब मैं ये बर्थडे मेरी रूहानी बर्थडे, जिस्मानी तो मर गया, रूहानी जिंदा हो गया। तो इन चीजों को हमने अपने ज़हन में रखना है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया, मौत के हवाला कर दिया। तो इन बातों को हमने समझना है कि खुदा हमें क्या बताना चाहते हैं। यहाँ फिलिप्पियों के नाम खत देखिए आप, थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको पूरा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस रसूल हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी, मेरे फायदा की थी, अब मैं उनको मसीह की खातिर क्या समझता हूँ? कचरा समझता हूँ। कब? इसी को कबूल करने के बाद, रास्तबाज बनने के बाद, तौबा करने के बाद, नजात पाने के बाद, अब वो मेरे लिए कूड़ा करकट बन गई है। जिस तरह हम घर में से गंद को झाड़ू लगाकर बास्केट में डाल लेते हैं, ठीक उसी तरह पौलुस रसूल हमें यहाँ बताना चाहते हैं, कहते हैं कि लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। कहते जितनी चीजें मेरे फायदा नहीं था, यीशु मसीह नहीं, मैं कोरोना रोगी का समझना नुकसान समझना। कहता अब वो मेरे लिए नुकसान है। जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, मैं चोरी भी करता था, मैं गाली भी देता था, मैं नशा भी करता था, यानी कि हर वो काम जो मुझे करना था मैं करता था।
کہہ رہے ہیں کہ اب جب میں مسیح میں ہوں تو یہ ساری چیزوں کو کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، بیکار سمجھتا ہوں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب راست باز بن گیا ہوں یا بننا چاہتا ہوں، ان کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان کو؟ پالوس رسول نے کیا کہا کہ جو دیوار میں نے ڈھا دی ہے اس کو دوبارہ بناتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ مثال کے طور پر بپتسمہ میں نے لیا یا ابھی لینا ہے، لینے سے پہلے میں نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں میں نے ترک کر دی کہ اور میں بپتسمہ لے رہا اور میں آج تو بعد کام نہیں کرتا، 4 دن بعد پھر وہی پیتا، پھر کیا ہوگا؟ گناہگار کون ہے؟ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہاں جب ہوگا کہ یہ کام میں نے چھوڑ دیا، اب اس کام کو میں نے کس کے لیے نہیں کرنا؟ اسی کے لیے نہیں کرنا یا اپنے لیے نہیں کرنا؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ کس کے لیے نہیں کرنا؟ اسی کے لیے یا اپنے لیے؟ اپنے لیے کرنا ہے بھائی۔ مسیح کو کچھ فرق نہیں پڑتا، نقصان جب ہوگا تو ہمارا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ میرے پیچھے ہو رہے، اس نے کہا کہ اے خداوند ہم نے تو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یسوع نے کہا، کیا کہا؟ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے میرے لیے کچھ چھوڑا۔ بھائی ہم نے اپنی جان بچانی ہے، بس ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ بچے گی کیسے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یسوع کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے۔ فائدہ تو ہمیں پہنچ رہا ہے نا، اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ خدا کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں کسی کے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اسے فائدہ دے سکیں۔ خدا اب میں تیری عبادت کرنا، تیرے بڑا فائدہ آئے گا، ہو سکتا ہے ایسا؟ خدا میں چرچ چل رہا، تیرے بڑا فائدہ آئے گا، فائدہ تو کیوں ہو رہا ہے؟ چرچ میں جانا ہے، دعا میں کر دیے، برکت ملی، وہ تو برکتاں کا مالک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ تو برکتوں کا مالک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس لائق ہے۔ ہم تو اس لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ اس لائق ہے۔ نہ کرے تو نقصان اس کا کوئی نہیں، نقصان تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کر رہے، اس کو فالو نہیں کر رہے، اس کے پیچھے نہیں چل رہے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو نقصان تو ہمارا اپنا ہے، موت کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کو گوا رہے ہیں۔ زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح۔
जो यीशु के पास आता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो आज हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि कलाम हमें ये बताता है कि जीना मेरा मसीह और मरना मेरा क्या है? हाँ जी, नफा। जीना मेरा मसीह और मरना मेरा, बोले सब कहीं, जीना मेरा मसीह जीना मेरा मसीह और मरना मेरा और मरना मेरा नफा है। नफा है। यानी कि कब जीना मेरा मसीह है और कब मेरा मरना नफा है, यानी कि फायदा मंद है, जब मैं मसीह हूं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मेरा मसीह और मरना मेरा नफा है। कह रहे मैं जीऊं तो भी यीशु के लिए जी रहा हूं, मर जाऊं तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, फिर भी मैंने यीशु के पास ही जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये किसके लिए? उसके लिए जो उसको फॉलो करता है, जो उसको फॉलो आता है। हम तो फॉलोअर किसके बनते हैं? मोबाइल के ऊपर जो चैटिंग होती है, ठीक है, उसके उनका जब फॉलो करें उसके फॉलोअर बनते रहते हैं। जब फॉलो करें हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं। तो हमें फॉलो किसको करना है? यीशु मसीह को। किसके फॉलोअर बनना है? यीशु मसीह के। उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो पौलुस रसूल ने फॉलो किया और आज पौलुस रसूल का इतना बड़ा नाम है, आप खुद इस बात को देख सकते हैं। कितना खतरनाक शख्स था। कब तक? जब तक यीशु के पास नहीं आया। मसीह ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, खत्म करता ਸੀ, खत्म करता। मगर जैसे इसने यीशु मसीह का कबूल किया तो फिर मसीह को खत्म नहीं करता था, फिर मसीह को बढ़ाता था, फिर मसीह को फैलाता था। तो आज हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि अगर हम सिर्फ बपतिस्मा लेके बैठ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं एक जगह पर, जम जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ये बपतिस्मा नहीं है, फर्जी बपतिस्मा नहीं है। फर्ज पूरा ना करें, क्योंकि मसीहत में फर्ज नाम की कोई चीज नहीं है। मसीहत में कोई भी फर्ज नाम की चीज नहीं है। यीशु सिर्फ फर्जी तौर पर नहीं आया जमीन पर, यीशु की हकीकी तौर पर आया। हालेलुया। हालेलुया। वो फर्ज पूरा करने के लिए नहीं आया था, बल्कि कोई सी जमीन के ऊपर अपना काम पूरा करने आया था। तो खुदा ने चुन लिया, तो तेरी का खुदा मैं फर्ज पूरा करने जा रहा, बाकी तो बचना तो ठीक है, नहीं बचना तो मैं नहीं करा, मैं अपना फर्ज पूरा करके ले जा रहा जमीन से, और जड़ा मान लेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो भी ठीक है। ऐसा कहीं भी यीशु के लिए नहीं था, बल्कि बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत हमें बताती है। कोई बताएगा बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत क्या है? हर एक बार बताता हूँ, बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत और लिखी कोई बोल रहा था अभी हल्का सा। जी, ये बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत है, ज़हन में रखा करें। जहाँ
कहीं भी आपको पूछा जाए कि बाइबल मुकद्दस की मरकजी आए तो आपके फौरन ज़हन में आ जाए कि यूहन्ना 3:16 की बात हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी बात हो रही है? यूहन्ना 3:16 की बात हो रही है। और 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया? अपना इकलौता बेटा बेटा बख्शना को आसान था। बेटा दे दिया किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए और सबके लिए। हम जितने यहाँ मौजूद है सबके लिए उसने जमीन पर अपने बेटे को भेजा। तो कितने बेटे थे खुदा के? एक ही एक ही बेटा। साडा एक मुंडा है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, नहीं ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। खुदा और उसके कलाम पर गौर करें। एक ही बेटा उसको भी भेज दिया, जहाँ मेरे लोगों के लिए कुर्बान हो जा। हालेलुया, हालेलुया। और जब बिगाड़िया नहीं, संभाल के नहीं रखा। उन्हें क्या है? जा जमीन पे जा, तू एक के लिए तेरे एक कुर्बान होने नाल कितने बेटे ते बेटियां मेरी हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे बेटे और बेटियां बढ़ जाएंगे। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? यूहन्ना में पहले बात की 11वीं आयत में, यूहन्ना पहले बात की 11वीं आयत में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दे दिया। पहले एक बेटा, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आप हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बेटे और बेटियां बन चुके हैं। पहले एक ही था। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना खुदा को शर्फ हासिल है, उसने एक बेटे से इतने सारे बेटे और बेटियां, एक बेटे को कुर्बान करके इतने बेटे और बेटियां जो है वो ले लिए। तो आज दुनिया में करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में मसीही है जो बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमने करना क्या है? आज का कलाम का लंबे लबाब क्या है? क्या हम सीखते हैं आज के कलाम से? आज का कलाम हमें क्या बताता है कि हमने करना क्या है? वो दीवार मैंने ढा दी और उसे फिर बनाता हूँ। हम इसमें बात करते हैं। क्या क्या सीखा आपसे? क्या आप समझते हैं कि इससे मैं क्या करता हूँ? अगर दीवार गिरा दूँ और खुदा से कहूँ खुदा देख लीजिए बस हो रहा है, टिकी रहेगी। और सिंपल, कोई इसमें घुमा फिरा के करने वाली बात है, सिंपल और सादा बात है। तो की करता है? जब तस्मे ला के बैठे जाओ, तस्मा ला लेना, तस्मा ला लिया बस ठीक है भाई। जब तस्मा लेना है, लास्ट में किसी जगह पर हम गए, वहां मैसेज सुना और मैसेज सुनाने के बाद सबने, शायद ही कोई होगा जिसने ये ना कहा हो कि बहुत जबरदस्त मैसेज था, बहुत कमाल का मैसेज था। तो वहाँ एक बहन बैठी थी
बैप्टिस्मे में हम बात कर रहे थे, मैं खुद ही बैप्टिस्मे में बात की। मैंने उन्हें एक बात बताई बैप्टिस्मे के हवाले